की प्रगति में सहयोगी सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 46 श्री रामजी लाल सुमन। सभापति जी, प्रश्न संख्या 46। ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. The first supplementary, श्री रामजी लाल सुमन। सभापति जी, बहुत ही भ्रामक जवाब विदेश मंत्री जी ने दिया है और मैंने जो प्रश्न किया था उसमें जो जानकारी हासिल की थी उसके जवाब में विदेश मंत्री जी ने बताया कि 2009 से लेकर के अब तक 18,832 जो भारतीय लोग गलत तरीके से रह रहे थे, अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उनको निर्वासित किया गया है। विदेश मंत्री जी का यह भी कहना है सभापति जी कि 5 फरवरी के बाद, 5 फरवरी 2025 के बाद एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां यह प्रकाश में आया हो कि बेड़ियां लगा करके, हथकड़ियां लगा करके किसी भारतीय को अमेरिका ने भेजा हो। सभापति महोदय, ये जानकारी असत्य है, मिथ्या है। मेरे पास तो निश्चित जानकारी है सभापति महोदय। 25 सितंबर को ये तो कह रहे हैं कि 5 फरवरी के बाद कोई ऐसा केस हुआ ही नहीं है, लेकिन 25 फरवरी को हरजीत कौर नाम की 73 वर्ष की एक महिला जो 33 साल से अमेरिका में रह रही थी, सभापति महोदय, उनको बेड़ियां लगा करके अमानवीय तरीके से अमेरिका से बाहर किया गया है। सभापति महोदय, लगता यह है कि अमेरिका इनकी किसी भी बात का नोटिस लेने को तैयार नहीं है और संभावना यह लगती है कि हमने अपनी प्रतिष्ठा गरिमा को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। सभा क्या है? अरे क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्या है? सभापति जी, आप मुझे संरक्षण दीजिए। सब मेंबर, honorable member, I request you not to give a lecture. You please be specific to your question. सभापति जी, मैं बहुत विनम्रता से आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि ये सरकार सदन को गुमराह कर रही है। No. You have to raise only your question. This is not the. This is वर्षीय महिला को. No. Nothing will go on record except the question. Nothing will go on record except the question. This is not the. सभापति, is not. सभापति जी, Yes. Sir, नहीं मेरे आप दीजिए। अरे मुझे सवाल मुझे सवाल तक दे दीजिए ना। Please sit down. सवाल तो सुन। नहीं। सवाल तो सुन लीजिए। आप प्लीज बैठिए। अरे हमारा सवाल तो सुन लीजिए सभापति। Honorable member has referred to a case pertaining to Srimati Harjeet Kaur, who was deported from the United States. Now, in her case, sir, her own lawyer has stated on record, I quote, "Thankfully, they did not cuff her. One officer was going to do it, but there was another officer who said, don't do it because of her age." I also would like to inform the member through you, sir, that whenever any flight with deportees come, whether it is a chartered flight or whether it is a commercial flight, the deportees are invariably interviewed by officials of the Government of India. In this particular case, our immigration officials confirmed that in this case she was not cuffed. So we have seen the reports pertaining to this, but I would also like, sir, to inform the member of something else. While Srimati Harjeet Kaur was not handcuffed, she was maltreated. She was maltreated in detention before she was put on the flight. So on the 26th of September, we have officially, through a note verbal, taken up her treatment, her maltreatment, with the American Embassy. We have made clear our very strong concern about the manner of her treatment and asked the Embassy and the American authorities to look into this matter. So again, I would like to say, sir, my answer is absolutely accurate. I know perhaps the honourable member, out of concern
having read press reports, is raising a matter. We have gone into that matter. We have clarified the matter. We have launched our concern. We have indicated our concern to the American embassy. So I hope he will rest assured with that. Second supplementary, Sri Ramji Lal Suman. सभापति जी, मैं जानना ये चाहता हूँ। Be specific about your supplementary. सभापति जी, आपका सदस्य हर वक्त आप सरकार को बचाते रहते, हमारी बात भी सुन लिया करिए। No, I am requesting you to be specific to your question, nothing else. सभापति जी, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि गैर कानूनी तरीके से हमारे देश से जो लोग अमेरिका जाते हैं या भेजे जाते हैं, कौन सी ऐसी संस्था या एजेंसी हैं, इसके बारे में सरकार को निश्चित जानकारी है और कैसे इन संस्थाओं को चिन्हित करके अब तक सरकार ने उनके खिलाफ क्या प्रभावी कार्रवाई की है? Honorable Minister. Sir, again, I appreciate the member's concern on this matter. I would like to inform him that the NIA has registered and investigated 27 human trafficking cases, resulting in 169 arrests and charge sheet against 132 individuals. This is what has been done by the NIA, which has, sir, established some years ago an anti-human trafficking division. It has today a mandate to cover human trafficking. Apart from that, various state governments have also launched investigations, sir. In case of NIA, I also want to say, particularly NIA arrested 2 important traffickers in Haryana and Punjab on the 7th of August, and then in Himachal Pradesh, 2 more people on the 2nd of October. Where state governments are concerned, sir, the maximum number of trafficking is from the state of Punjab. The Punjab government has constituted a SIT and a fact-finding committee. As per information given by them to us, 25 FIRs have been registered against 58 illegal travel agents. 16 accused have been arrested. Where the state of Haryana is concerned, 2,325 cases have been registered, 44 FIRs have been registered, 27 people have been arrested. Also, one very significant trafficker has been arrested by the state government of Gujarat. Third supplementary, Sri Harish Biran. Thank you. Thank you, Chairman, sir. To the Honourable Minister, through you, sir, we face 2 problems as far as the citizens from India who go to the US. One is who goes through the legal way, the other is who goes through illegal ways. Now, as far as those who go through the legal way, sir, there are some 6,000 F1 visas which have been revoked by the US, mostly the student visas. Now, student visas have been revoked on certain postings on the social media by the students, particularly Solidarity for Gaza, etc., etc. Now, whether the government has intervened for these students whose visa has been cancelled, or does the government accept the US position that political dissent by our students is a terrorist activity that deserves deportation? That is as far as the legal process is concerned. Now, as far as the illegal recruitments are concerned, the Honourable Minister, Kerala police have forwarded 531 complaints against illegal recruitment agencies to the ministry. The ministry has to give sanction, but only 17 has been given sanction. That is only 3%. Now, that low sanction rate also is giving a lot of problems. So, whether the ministry is considering giving some sort of amendment to the Immigration Act so that the states itself, without the sanction of the ministry, can take action against the illegal recruitment agencies. Honourable Minister. So, where the cancellation or revocation of student visas were done, the problem began in April of 2025, where there was a new policy which was announced by the Secretary of State, and as a result of that,
even for relatively minor offences, we saw the cancellation of visas of students, and in many cases also there was pressure on them to self-deport. So this is something which had happened. So I would like to, sir, inform the honourable member through you that yes, in each of these cases, this matter, wherever it came to our attention, and many students directly contacted consulates and embassies. The consulates and embassy intervened where possible, and we have tried to get the American system to understand that minor offences should not be a reason for such action. However, I also want to say, sir, that the issuance of visa is a sovereign right of a government. Now, in the case of the United States, the U.S. government has taken a view. In fact, the latest announcement was yesterday. They have taken a view that every visa adjudication is a national security decision. So they reserve the right to take a decision on a visa which is based on their assessment of the national security implication of a particular individual's position. Furthermore, they have also very publicly said that where student visas are concerned, they would ask all applicants to adjust their social media settings from privacy settings to public settings so that they do scrutinize the social media postings of people who have visas potentially or actually in the United States. That is a position that they have publicly taken. With regard to the sanction from Kerala state government, sir, I don't have the exact figures. What I do know is that where we have requests from state governments for sanctioning prosecution, we obviously take a very sort of proactive and strong view on this. I will look at the particular details which the honourable member has flagged, sir, and I will inform him of what we intend to do. Thank you. Srimati Rajati. Honorable Chairman, sir, வணக்கம். வெளிநாடுகளிலிருந்து இங்கே அனுப்பப்படக்கூடிய நம்முடைய குடிமக்கள் மிக மோசமாக கை விலங்குகளோடு அனுப்பப்படுவதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். வெளிநாடுகளிலிருந்து நாடு கடத்தப்படுகிற இந்திய குடிமக்கள் பாதுகாப்பாக கண்ணியத்துடனும் தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்புவதை உறுதி செய்கிறதற்காக குறிப்பாக பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் போன்ற பாதிப்புக்குள்ளான பிரிவுகளுக்காக இந்திய அரசு ஏதேனும் முன்முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளதா அல்லது அந்த அரசுகளுக்கு கடுமையாக எதிர்வினையாற்றி இருக்கிறதா என்று அறிய விரும்புகிறேன். நன்றி. Honorable Minister. Sir, the government shares the honourable member's concern, particularly in terms of use of restraints against women and children. I would like to, sir, inform the honourable member that the U.S. ICE, their immigration system, they have immigration customs enforcement system, sir. They have a policy of what they call use of restraints. This policy was in place from the 19th of November 2012. As per this policy, sir, it says, I give you a quote, detainees transported by ICE aircraft will be fully restrained by the use of handcuffs, waist chains and leg irons during flights. However, we have very strongly taken up with the American side that this should not be applied to women and children. The initial flights after the Trump administration started vigorously deporting illegals had such cases. This was also something which was discussed in the last session of Parliament. But after our protest, to the best of our knowledge, sir, since February, as my answer says,
we have not had a recurrence of that situation. Fifth supplementary, Srimati Rekha Sharma ji. Honorable Chairman, sir. Sir, through you, I would like to humbly ask Honorable Minister, about the women and young girls who are being trafficked in the name of marriage from Telangana in huge number, whether these illegal agents are being arrested in these matters, because as chairperson of NCW, I have done many inquiries in these matters, and the agents are not been arrested in these cases. So I just want to know about this. Honorable Minister. Sir, since the specific question which the honourable member has raised does not pertain to the US account, I don't have the numbers readily with me, but I can tell her that wherever cases have come to our attention of trafficking, and mostly this happens in respect of the Gulf, wherever cases have come to our attention, the embassy has intervened. We have taken action against those involved. We have written to states concerned, and I know that in the case of Telangana particularly we have done so. But exactly what has been the follow-up action in terms of registering cases, what has been the prosecution thereafter, I will have to get my figures, sir, and share it with the honourable member. Thank you. Question number 47, Sri Sanjay Sethji. Question number 47. Honorable Minister, Sri Arjun Ram Meghwal ji. सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया सर. थैंक यू. Now first supplementary, Sri Sanjay Seth ji. जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार हुआ है, उससे भारत के नागरिकों की आयु सीमा में औसत सीमा बढ़ गई है. दूसरे देशों में जिसमें यूएसए है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आजीवन सेवा देते हैं. ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में 70 वर्ष तक आयु सीमा की गई है. हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60 साल, हाई कोर्ट में 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की आयु सीमा 65 वर्ष है. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार जुडिशियल पेंडेंसी को देखते हुए इन जजेस की आयु सीमा को बढ़ाने पे कोई विचार कर रही है? सर, चेयरमैन सर, जो हमारा क्वेश्चन था, जो माननीय सांसद जी ने पूछा था, वो डिटेल ऑफ सैंक्शनड एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी अक्रॉस द कंट्री से संबंधित था. इन्होंने जो जजेज की आयु है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहाँ 60 साल, हाई कोर्ट्स में जजेज की आयु 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में जजेज जो हैं उनकी आयु 65 साल है. ये अभी वर्तमान में व्यवस्था है. ये कह रहे हैं कि क्या कोई आयु इंक्रीज करने का प्रस्ताव है. मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को कहना चाहता हूं कि अभी कोई ऐसा प्रपोजल पेंडिंग नहीं है. थैंक यू. सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री संजय सेठ जी. हमारी सरकार ने हर क्षेत्र के विकास करने में कार्य किया है. इसमें लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी शामिल है. 1 मई 2014 से जुलाई 2025 तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 70 जजेस, हाई कोर्ट में 1058 नए जजेस को अपॉइंट किया है. परंतु इसके बाद भी करोड़ों केस पेंडिंग हैं. मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जिसमें हर जज की एक टारगेट सीमा निश्चित की जाए, जिससे प्रत्येक जज को नियुक्ति के बाद एक निश्चित संख्या में केस निपटाने के लिए करने होंगे और इससे एक आम जनता को निश्चित समय में न्याय मिलने की प्रक्रिया हो सकेगी. Now, Honorable Minister.
थैंक यू चेयरमैन सर। जैसे माननीय सांसद जी ने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 2014 के बाद बहुत से सुधार किए हैं जुडिशरी में। जैसे ई कोर्ट फेज फर्स्ट, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने सुधार किया, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हमने लैन बोलते हैं। फिर हमने ई कोर्ट्स फेज सेकंड में हमने आईसीटी, हार्डवेयर, डिजिटल फाइलिंग, ई सेवा केंद्र जिसको हम वैन बोलते हैं, इसमें हमने सुधार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। फिर ई कोर्ट फेज सेकंड में 7,210 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब सुविधाएं बढ़ी है और उनको जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति सरकार करने के मनसा रखती है। अब जो आपने पूछा है कि केसेस पेंडिंग है उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने एक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया है। उसमें हम केसेस का एनालिसिस करते हैं और उनकी एक कमेटी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि वो देखते हैं कि 50 साल पुराना केस कौन सा है, 40 साल पुराना केस कौन सा है, 30 साल पुराना केस कौन सा है, 20 साल पुराना केस कौन सा है, 10 साल पुराना केस कौन सा है, और उसका एनालिसिस करके और उसमें जल्दी निपटारे का प्रयास सुप्रीम कोर्ट करता है सर। थैंक यू। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि 297 हाईकोर्ट जजेस की जगह खाली है, गुजरात में 16 जजेस की जगह खाली है। नाउ क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस का ये सिद्धांत है कि प्री ट्रायल जिसको भी अरेस्ट किया है उसको बेल इज द रूल नॉट द जेल। उसकी बेल की मैटर दिनों तक नहीं चलती है, हफ्तों तक नहीं चलती है, बेल की मैटर नहीं चलती है। आप समझिए न्याय कहां से मिलेगा। तो ये जो जजेस की जगह खाली है, आपके पास क्वालिफाइड लॉयर्स एट बार भी है, आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए भी लोग हैं। ये होते हुए भी देश में 297 और गुजरात में 16 जगह खाली है, सैंक्शन उस जगह खाली है, तो ये जगह आप कब तक भरना चाहते हो? माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न किया है वो मूलतः गुजरात से संबंधित है, तो मैं टोटल एक पिक्चर देना चाहता हूं। हाईकोर्ट में जितने भी हमारे जजेस के पद हैं वो 1122 1122 पद हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ है। तो वर्किंग स्ट्रेंथ हमारी 825 है और जो वैकेंट पोस्ट हैं वो 297 है। अब आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो 297 में जो वैकेंट पोस्ट है उसमें 97 जो केसेज हैं वो प्रोसेस में, 200 जजों के केस ऐसे हैं जिनमें हाईकोर्ट कॉलेजियम से हमें प्रस्ताव आने हैं। तो हाईकोर्ट कॉलेजियम से प्रस्ताव आएंगे तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी जजेस के भरने की। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत कोप चाड़े। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि और न्याय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के गरीब किसान, मजदूर, माता बहनें न्यायपालिका का चक्कर लगाते हुए न्याय मिलने के लिए न्यायालय के द्वार पर आशा लगाए बैठते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं, क्या हम भविष्य में गरीब समाज को न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों की संख्या एवं तालुका स्तर पर न्याय दरबार की संख्या बढ़ाने का हमारा कोई विचार है, या तथा भविष्य में इन गरीबों के लिए निःशुल्क बिना कोर्ट फीस लिए बिना गरीब जनता को न्याय दिलाने पर हमारे सरकार के माध्यम से कोई प्रयास हम मंत्रालय के माध्यम से गरीब जनता के लिए कर रहे हैं क्या? चेयरमैन सर, हमारे संविधान के आर्टिकल 39A में लीगल एड टू द पुअर का प्रावधान किया हुआ है। उसके तहत टेली लॉ, न्याय बंधु, लोक अदालत भी उसका पार्ट है। ई सेवा केंद्र के माध्यम से भी हम लीगल फ्री सर्विस जो है वो देते हैं गरीब आदमियों को। और उसके अलावा भी हमारा एक नालसा करके एक इंस्टीट्यूट है जो नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, तालुका लेवल पे भी है, और जिसको भी जरूरत है उसको हम फ्री लीगल एड देते हैं सर। थैंक यू। द फिफ्थ सप्लीमेंट्री कुमारी स्वाति मालीवाल।
थैंक यू चेयरमैन सर। सर, हमारे देश में हर घंटे 51 महिलाओं के साथ अपराध होता है। सर, एज चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर विमेन, मैंने 8 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैंडल करे हैं। सर, हमारे देश में न्याय पाना इतनी लंबी और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उससे लड़कियों की हिम्मत हार जाती हैं वो। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो देश भर के हाई कोर्ट्स में 63 लाख केसेस पेंडिंग हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या आधुनिक मेजर्स, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और ये जितनी वैकेंसीज हैं और पूरे देश में वैकेंसीज हैं जजेस की, उनको भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू चेयरमैन सर। जो माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया है वो सीधा इससे प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत ही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स स्थापित किए जा रहे हैं। और हमारे वर्तमान में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 400 ई पॉक्सो कोर्ट्स के साथ 773 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी कार्यरत है। वो जो इन्होंने जो चिंता प्रकट की है वो चिंता वाजिब है, लेकिन हम इसको उचित प्लेटफॉर्म पे इस विषय को रखेंगे। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 48 श्री सीवी सन्मुगम जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री सीवी सन्मुगम जी। वणक्कम மேதகு தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார், human animal conflicts affect both ecological balance and human safety, and it is an issue that involves constitutional obligation as well. The rapid population growth, habitat fragmentation, and competition for the same resources have triggered repeated conflict between human and wildlife, causing loss of lives, crops, and property. In simple terms, it is for struggle for space and resources when the needs and the behavior of wildlife overlap with the interest of humans. In my state of Tamil Nadu, a significant portion of this conflict is directly linked to the disruption of elephant corridors in the western eastern Ghats, where the fragmented landscapes force elephants into the human settlements, resulting in repeated loss of lives and livelihoods. Tamil Nadu is witnessing a sharp increase in human-wildlife conflict, with the current fiscal year 24-25 recording 80 human deaths, the highest in 5 years. Besides the human casualties, the state has experienced 4,235 crop damage incidents, 259 livestock deaths, 176 cases of property damages, and 138 human injuries so far in 24-25, according to the Chief Wildlife Warden. So I asked the Honourable Minister, what specific steps is the Ministry taking to ensure states, including Tamil Nadu, complete the scientific identification, notification, and protection of elephant corridors as directed by the Supreme Court? By when will a national network of legally recognized elephant corridors be operational? In view of the court's observation on the humanitarian aspect, the government proposes a uniform nationwide compensation amount for human deaths and injuries caused by wildlife, especially elephants, so that families in high conflict states like Tamil Nadu are not subject to unequal and delayed relief under state-specific norms. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये प्रश्न केवल मनुष्य और वन्यजीव संघर्ष का नहीं है, बल्कि ये मनुष्य और वन्यजीव के सह अस्तित्व का भी है। इस पृथ्वी पर केवल हम लोग वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, तो उनका सह अस्तित्व भी आवश्यक है। ये जो संघर्ष की बढ़ती हुई परिस्थिति है, ये जनसंख्या का असंतुलन, विकास, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में दखल
और उसके कारण ये संघर्ष ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए हम लगातार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बेहतर प्रयास, उसमें जो ओवरलैपिंग है उसको कम करने का, और जो माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर करी है, टकराव के जो कारण हैं उनको चिन्हित करके उनको समाधान करने का कार्य हम कर रहे हैं। हम वन्य क्षेत्र के जो रिसोर्सेज हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो शेड्यूल 1 के स्पीशीज हैं, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन गोर और सांप आदि हैं, उनके भी कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं और लोगों को जो वन्य क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनके साथ सह अस्तित्व रहे उसके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि हाथियों के कारण काफी संघर्ष है, जिसमें लगभग औसतन 500 व्यक्तियों की भी जान जाती है, पर हम ये भी जानते हैं कि एक्सीडेंट और बाकी कारणों से हाथी भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। एक जो बड़ा विषय है जो जंगल के बाहर भी है, वो सांप के काटने के कारण मृत्यु है, और ये तो पूरे देश भर में जो सबसे ज्यादा जो जान जाती है वो सांप काटने के कारण है। दूसरा जो किसानों को नुकसान है वो जो हमारे शेड्यूल 2 की स्पीशीज हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जंगली सुअर और नीलगाय है, जिसके कारण जो खेत किसानों के जंगल के आसपास हैं उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है और इंसानों को चोट भी लगती है। हम राज्य सरकारों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकारें इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, उनके पास डेटा भी है और वो लोग फील्ड लेवल पर कार्य भी करते हैं। उसके साथ ही साथ मंत्रालय के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके साथ कुछ सिविल सोसाइटी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए उनके साथ एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाते हुए हमने 2021 में और उसके बाद 2023 में एक डिटेल गाइडलाइन भी जारी करी है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत हमने हॉटस्पॉट की पहचान करी है, जहां पर हम राज्य के वन अधिकारियों के साथ मिलकर के ज्यादा तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। हमने राज्यों में जहां पर ज्यादा संघर्ष प्रभावी हो रहे हैं वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाने की बात करी है, एसओपी के प्रति लोगों को जागरूक किया है। उसके साथ ही ये जो एक्सीडेंट है उसमें एक्स ग्रेशिया पेमेंट को भी सुनिश्चित किया है। इस एक्स ग्रेशिया पेमेंट में हमने जो कोई मृत्यु या जहां पर बहुत ज्यादा अपाहिज किया गया है वहां पर 10 लाख रुपए की राशि, जो स्कीम में पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ा करके किया है। इसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके सेक्शन 11 में हमने खतरनाक हो चुके जो वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं उसकी पावर जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दी है। देश में जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसको सुरक्षित रखने के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व, इसकी संख्या में भी हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। लंबा हो रहा है तो फिर अगले सप्लीमेंट्री में दे देंगे। थैंक यू। Second supplementary through CV Shanmugam. Sir, the Honorable Minister has mentioned guidelines and advisories, but the scale and severity of conflict necessitate a robust, enforceable national framework. The Honorable Supreme Court, in its order dated 17/11/25, issued sweeping direction including all states must actively consider classifying human-wildlife conflict as a national disaster. Ex gratia of 10 lakhs for every human death caused due to wildlife attack. NTCA to frame model guidelines on human-wildlife conflict within 6 months, and states must adopt them within 6 months thereafter. Compensation must be swift and accessible, covering human death, injury, crop and cattle loss. Mandatory close coordination between forest, revenue, police, disaster management and local bodies. In this, I want to ask
What is the present status of NTCA's model guidelines on human-wildlife conflict? By when does the ministry intend to make their adoption mandatory for all states, including Tamil Nadu? Will the ministry consider issuing a time-bound national action plan, making it compulsory for all states to establish district-level conflict management units, deploy real-time rapid response time teams, integrate forest, revenue, police, disaster management departments under a standard operating procedure, and ensure uniform prompt compensation so that the recurring elephant-related conflicts in Tamil Nadu districts like Coimbatore, the Nilagiri, Erode and Hosur are handled in coordinated and accountable manner. Vanakkam, Nandri. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को ये जानकर के हर्ष होगा कि कोयम्बटूर में जो हमारा साइकॉन का सेंटर है उसको हमने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया है, ताकि देश भर में अलग अलग जगहों पे जो ये संघर्ष चलते हैं उसके लिए एक कोई अच्छे तरीके से उसकी स्टडी की जा सके, और कोयम्बटूर के उस सेंटर को हमने प्रारंभ भी किया है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि एनटीसीए ने देश भर में 32 टाइगर कॉरिडोर्स की पहचान करी है और 2023 में हमने 150 एलिफेंट कॉरिडोर की भी पहचान करी है। हाथियों का विशेष रूप से जो मूवमेंट है वो अंतर राज्य रहता है, और ये जो हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का ये जो मिला जुला एरिया है जो बांदीपुर से शुरू होकर वायनाड और मधुमलाई तक जाता है, इस प्रकार के जो क्षेत्र है, या बंगाल में हमारे मेदिनीपुर से होकर के और उड़ीसा तक जो हाथी का मूवमेंट रहता है उसमें झारखंड का भी क्षेत्र सम्मिलित है। उन सारे कॉरिडोर्स के मानक को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उसके पश्चात भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट की CSS योजना के तहत राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया करा रहे हैं। विशेष रूप से हाथियों के मूवमेंट के लिए हम अर्ली वार्निंग सिस्टम, सोलर फेंसिंग, बायो फेंसिंग और कुछ जगहों पे हम लोग बाउंड्री वॉल के लिए भी फंड उपलब्ध करा रहे हैं। रेस्पॉन्स टीम के मदद और उनके मुआवजे के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रेडियो कॉलर, डिजिटल सेंसर वॉल और सर्वेलेंस लगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों वायनाड भी गया था, तो मैंने वहां के जिला अधिकारी को ये निर्देश किया था कि जिला अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों मिलकर के और IPS अफसर जो SP हैं, तीनों मिलकर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मूवमेंट की, वो मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन को वो शेयर कर सके। हम ये जानते हैं कि ये मानव और जो जानवर का संघर्ष एक सामाजिक विकास और संरक्षण की चुनौती है, और इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि वन्य जीव विरासत की रक्षा करते हुए समुदायों की सुरक्षा भी निश्चित करे, ताकि सब साथ रहकर विज्ञान आधारित तरीकों से समुदायों की भागीदारी से इससे अस्तित्व को बनाए रखें। The third supplementary, Ashok Chavan जी। महोदय, धन्यवाद आपका। मैं माननीय मंत्री जी से जो उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रोकने के लिए कई सुझाव और कई तरीकों का उन्होंने जिक्र किया है। मैं खास करके इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किसानों की समस्या कुछ और है कि बहुत बार रात को जाना पड़ता है खेतों में पानी देने के लिए। हमारे प्रयास हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, प्रिवेंटिव मेजर्स, कॉम्पेंसेशन वगैरह, ठीक है, पर जान जाने से बेटर है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में कुछ सोचा जाए। जैसे भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, हर स्टेट में समस्याएं हैं कि बिजली का समय का जो बिजली दी जाती है वो कभी कभी रात को दी जाती है, दिन में बिजली मिलती नहीं, और खेतों में रात को बिजली देने की नौबत आती है, तो किसान को रात को वहाँ पर जाना पड़ता है अपनी खेती को पानी देने के लिए, पंप ऑपरेट करने के लिए। तो मेरा ये सुझाव है, बल्कि इसके बारे में अगर केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र और हर स्टेट से
अगर समन्वय करके बात की जाएगी तो रात का जो वक्त है उस वक्त की बिजली के बजाय दिन में उस बिजली का प्रयास अगर देने का किया जाए तो रात में खेत में जाने की नौबत कम रहेगी और ऐसे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं उसको कम करने के लिए इसका फ़ायदा हो सकता है। ये मेरा सुझाव है नंबर 1। और दूसरी बात है कि हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन, फील्ड्स की प्रोटेक्शन, क्योंकि हम देखते वाइल्ड एनिमल्स जब फील्ड में जाते हैं तो हमारी खेत की जो उपजाऊ है उसको ख़राब कर देते हैं, वहाँ पर बहुत उसका नुकसान हो जाता है। तो उसकी जो फेंसिंग है या इलेक्ट्रिकल उसकी जो करना पड़ता है उससे काफ़ी उससे नुकसान रोक सकते हैं। तो मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव है, उनके पास खुद अपने अच्छे प्रशासनिक अनुभव हैं और जो मुख्यतः विषय है वो राज्य सरकार के साथ संबंधित है। जहाँ तक वन्य क्षेत्रों के सीमांकन का विषय है, इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट के एरिया हैं जहाँ पर मानवीय आबादी नज़दीक है उन क्षेत्रों में हम लोग चिन्हित करते हैं और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत अगर जरूरत होती है तो सीमांकन का कार्य भी करते हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजन जी। मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि हम मानव और वन जीव के संघर्ष की बात तो कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने आंसर में भी दिया है कि चूंकि जनसंख्या और हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं जा रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हसदेव छत्तीसगढ़ में जो कई लाख पेड़ कट रहे हैं, जो वन जीवों का अधिकार छीन रहा है, तो क्या सरकार ने, एक तो मेरा प्रश्न है कि वहाँ कौन कौन से जानवर हैं, कितनी संख्या के जानवर हैं, और हम लोगों ने उनका घर छीना है तो क्या उनको कहाँ बसाएंगे आप? जो अटैक हो रहे हैं तो क्या उसकी सरकार की कोई प्लानिंग है? इस तरह हिमाचल है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, क्या ये सरकार बताएगी कि विगत 3 वर्षों के दौरान मानव हमलों यानी वन को विकास के नाम पर हम मानव हमलों की बात कर रहे हैं, लेकिन वन जीवों का घर छीनने के कारण कितने वन जीव हताहत हुए हैं, क्या उसका डेटा क्या सरकार रखती है? साथ ही इसके साथ मैं कहूंगी कि हम मानव के क्षति के मुआवजे की बात कर रहे हैं, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, लेकिन हम उनके घर में घुस रहे हैं। तो क्या जानवर अगर नहीं बचेंगे, फॉरेस्ट नहीं बचेगा, वन नहीं बचेगा, तो हम भी नहीं बचेंगे, तो क्या उनकी क्षति के मुआवजे के बारे में भी सरकार सोच रही है? थैंक यू सो मच। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है, पर समय की मर्यादा को देखते हुए मैं सीमित समय में उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न उन्होंने कहा है कि सरकार जो पशु हैं उनके संरक्षण के लिए क्या कार्य कर रही है। हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट भालू, ये सारे जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इनके लिए हम विशेष संरक्षण के कार्य चलाते हैं। उसके साथ ही माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि पिछले ही महीने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें भारत वन्य संरक्षित क्षेत्र को बचाए रखने में दुनिया का 3रे नंबर का देश, और हम आज भी दुनिया में अपनी रैंकिंग को बढ़ा करके रखे हैं। हम वन्य क्षेत्र के संरक्षण के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत एक ऐसा देश है जो हर 3रे साल एक रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जो भी लगातार ये दर्शा रही है कि हमने अपने वन्य क्षेत्र की सुरक्षा करी हुई है, उसके क्वालिटी मेंटेन के लिए हम आगे कार्य करते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस चिंता को जानता हूं कि हमें वन्य क्षेत्रों को उनका संरक्षण करना चाहिए, लेकिन सभी सांसद मिलकर अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यवाही को करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। Fifth supplementary, Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Sir, the recent reports have shown that tiger conservation habitats have pushed the leopards out of their natural habitat, thereby forcing them into farmland and creating an atmosphere more ripe for human-wildlife conflict. If it's a fact,
whether the ministry is aware of it and what are the steps taken to handle it. जी, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है ये बहुत सही विषय है। ये अभी एक प्रोजेक्ट पे हमने काम शुरू किया है, टाइगर आउटसाइड कॉरिडोर। ऐसे स्थानों को और ऐसे जो हमारे इस समय पूरे देश में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, वो जो 54 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें कोर एरिया के बाहर जो टाइगर्स हैं उस सारे विषयों की हम पहचान कर रहे हैं। विशेष रूप से जैसे मैं उदाहरण के लिए भी देना चाहूँगा कि मैं खुद फील्ड विजिट करके आया था पीलीभीत के आगे दुधवा क्षेत्र का, और कुछ जगहों पर हमारे जो क्षेत्र हैं वो आपस में अलग अलग भी हैं। तो जो टाइगर आउटसाइड टाइगर कॉरिडोर है उसको लेकर के एक विशेष परियोजना हमने शुरू करी है, इस स्थानों को भी चिन्हित करा है और उसके समाधान के लिए भी हम कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, श्री NR Ilango ji. My questions. Honorable Minister Shri Gajendra Shekhawat ji. माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। First supplementary through NR Ilango. Chairman, I would like to know, in view of the Tamil Nadu's rich cultural legacy, will the Ministry of Tourism consider approving Madurai as a nominated destination under the One State, One Destination scheme, given its global prominence through the Meenakshi Amman Temple, integrated heritage circuits and strong tourism infrastructure? Or consider Kanyakumari, recognizing its national significance as the southernmost tip of India, the confluence of three seas, and its capacity for enhanced coastal tourism development? धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने कन्याकुमारी और मदुरई इन दोनों में से किसी एक को आइकॉनिक डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें समाहित करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए आग्रह किया है। मैं सदन और सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि स्थान का और प्रोजेक्ट का चयन करना ये राज्य सरकार के जिम्मे है और राज्य सरकार ने तमिलनाडु में मामल्लापुरम को इसके लिए नामित करके वो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया है। इसलिए इन दोनों स्थान कन्याकुमारी और मैसूर, मैं मानता हूं कि उनका बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर भी अभी उनका कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। Second supplementary through NR Ilango. Union government proposes to work in coordination with the Tamil Nadu state government, the Department of Tamil Nadu State Archaeology, and leading research institution to ensure scientific integrity, transparency, and due national recognition for the ancient archaeological heritage of Tamil Nadu. That's my question. Sir, archaeological excavation is not concerned with the tourism department and ministry. I think ये मंत्रालय से बाहर के परिव्यू पे आपने क्वेश्चन। But excavation is not the subject of Ministry of Tourism, sir. First supplementary, the third supplementary, Srimati Renuka Chaudhary. Sir, it's, I want to draw the Honourable Minister's attention to the fact that today your tourism, which used to give you 7.9 crore in 2020, your employment is down to 4.2 crore. It's one of the largest instruments of self-employment and keeps artisans and all at remote areas employed. So it's rather alarming. I don't know what they can give Tamil Nadu when the union budget has been cut by 91% from 3.33 crore to just 3.07 crore. In the light of this, what are you doing to do international promotion like Incredible India, which was brought about and put us on the global map? How are you going to compete with countries like Thailand, Vietnam and Dubai? And you are not able to promote India as a cohesive whole nation. Why have you taken such budget cuts? And how are you going to create employment? And what are you going to give states, particularly a culturally rich state like Tamil Nadu and Telangana and other such areas? Thank you. Honourable Minister.
धन्यवाद सम्मानीय चेयरमैन साहब। मैं पहले माननीय सदस्य का धन्यवाद करते हुए मैं जो डेटा इन्होंने दिया है कि 7 करोड़ एम्प्लॉयमेंट से घट करके वो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, डेटा का उनका सोर्स क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2019 के बाद 2020 में जब कोविड की आपदा आई उसके कारण से जो टूरिज्म का क्षेत्र का जो नुकसान हुआ, ग्लोबली नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में जिन देशों ने पूरी दुनिया में टूरिज्म में सबसे बेहतर रिकवरी की है, भारत उसमें से एक है। और इसके अतिरिक्त ऐसे देश जिन्होंने 2019 के बेंचमार्क को वापस छुआ है, उनमें से भी भारत एक है। पिछले एक साल में भारत में 2 करोड़ से ज्यादा विदेशी सैलानी भारत में आए और उसके कारण से भारत को देश को 2,30,000 करोड़ रुपए का लगभग 33 बिलियन US डॉलर्स का विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। इसके अतिरिक्त भी आपने 3 देशों का नाम लेकर के थाईलैंड के कंपटीशन की बात कही, वियतनाम के कंपटीशन की बात कही, दुबई के कंपटीशन की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चेयरमैन साहब, थाईलैंड में मैं मानता हूं कि थाईलैंड में 40 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, भारत में जहां 20 मिलियन आता है, दुबई में 25 मिलियन आता है, वियतनाम में हमसे कम है लेकिन देश छोटा है। लेकिन मैं सदन के संज्ञान में ये विषय रखना चाहता हूं कि भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म की जितनी संभावनाएं हैं और जो पोटेंशियल भारत अर्जित कर रहा है, वो शायद इन देशों में कहीं किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं। जब कभी भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म के पोटेंशियल और उसके कारण से जो भारत में जिस तरह की क्षमताओं का संवर्धन होता है, क्योंकि केवल विदेशी टूरिस्ट आता है वही केवल आर्टिजन्स को या लोकल क्राफ्ट को या लोकल डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी जिस तरह से होती है उसको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। जब हम सदस्य भी कहीं जाते होंगे तो शायद हम भी उसी तरह से क्राफ्ट को खरीदते होंगे, प्रमोट करते होंगे, रिक्शा में बैठते होंगे, टैक्सी में बैठते होंगे, गाइड को हायर करते होंगे। और भारत का जो डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत है वो अनपैरेलल है, पूरी दुनिया में कहीं किसी के पास में नहीं है। भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म की मैं बात करूं, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की, 45 करोड़ यात्री जो है वो 4.5 करोड़ यात्री थाईलैंड में गए होंगे, लेकिन अकेले अयोध्या के मंदिर के अभी आंकड़े आए थे, आप उठा करके देखिए 8 करोड़ यात्रियों ने जाकर के अयोध्या में दर्शन किया। अकेले अगर मैं कुंभ की चर्चा करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहता हूं, अगर अकेले कुंभ की चर्चा करूं तो पिछले कुंभ के समय में 660 मिलियन यानी 66 करोड़ यात्रियों ने जाकर के कुंभ का दर्शन और स्नान किया। इसलिए हम केवल एक दृष्टि विशेष से देखेंगे, मुझे लगता है कि हम सेक्टर के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। So, fourth supplementary, श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, ओडिशा के मयूरभंज जिला में अवस्थित शिवलीपाल टाइगर रिजर्व देवकुंड, सीताकुंड, भीमकुंड, जोरदा, खिचिंग तथा अन्य बहुत सारे जलप्रपात और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल के पर्यटन का विकास के लिए क्या केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? धन्यवाद। कि मैंने चेयरमैन साहब, मैंने पहले भी निवेदन किया कि टूरिज्म सेक्टर प्राइमरीली इस पे डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल को बनाना, कंसीव करना, डीपीआर बनाना और भारत सरकार की प्रिवेलिंग स्कीम्स के तहत भारत सरकार के कंसिडरेशन के लिए भेजने तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उड़ीसा की राज्य सरकार अगर इन सब विषयों को लेकर के जो प्रपोजल्स बनाएगी और बना करके भारत सरकार को यदि भेजती है तो उस पर यथा नियम विचार किया जा सकता है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुधा मूर्ति जी। Thank you, sir, giving me an opportunity to talk. Sir, Tamil Nadu is famous for great temples of a Dravidian culture. You have Madurai, of course he talked, Rameshwaram, Gangaikonda Cholapuram, Tanjavur, and Dharaswaram and many more. Today I am going to talk about Srirangam. Sir, it's one of the famous temples
but not really known to people. It's more than 1,000 years old. It is in the area of 156 acres of land. It is the only living Hindu temple in the world, largest Hindu living temple in the world. Though there is a Cambodia, but Cambodia is not a living Hindu temple. It has 21 Gopurams, and its Rajagopuram is the tallest in Asia. Sir, it should be included in the tourism of our Tamil Nadu as well as our nation's destination. It has a great history, a great architecture, and it should be part of our tourist circuit in the south, because it comes in the world. If it comes in the World Heritage, sir, I am addressing this to the Minister of Tourism through you, sir. If it comes in the World Heritage, the footfall will be more. Globally, people will come to know. It will get a great opportunity to showcase the Dravidian culture to the entire world. Thank you very much. Jai Hind. Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने पहले के 2 प्रश्नों में उत्तर में निवेदन किया कि इट इज टू बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. If state government will initiate, we are certainly going to consider this. And simultaneously, I would request to the honourable minister or to the honourable member also कि यदि वो राज्य सरकार को इस विषय में लिखें और आग्रह करें कि ये जो श्रीरंगम के मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया जाना चाहिए. हालांकि वो पर्यटन के क्षेत्र नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास में उस मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, संस्कृति मंत्रालय की भी, यदि राज्य सरकार उस पर डोजियर बना करके भेजती है तो उसको टेंटेटिव लिस्ट में रखे जाने के लिए जो है भारत सरकार निश्चित रूप से काम कर सकती है. Question number 50, Professor Manoj Kumar Jha. जी. इधर हूँ सर इधर हूँ. क्वेश्चन नंबर 50. Honorable Minister. सर, उत्तर सभा पटल पे रखा गया. So first supplementary, Professor Manoj Kumar Jha. Yes sir. सर, सभा पटल पे जो उत्तर रखा गया है वो बहुत संतुष्टि नहीं देता है, थोड़ा निराशा भी देता है, लेकिन इसके हम साझीदार हैं. मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने आपके समक्ष रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आने वाली दिक्कतों का कोई जिक्र किया है, या डिले के बारे में कोई आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखा है अपनी दिक्कतों के बारे में? अगर ऐसा है तो क्या इस पे थोड़ा प्रकाश माननीय मंत्री जी और मंत्रालय डालेंगे? थैंक यू चेयरमैन सर. सर, ये जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने उठाया है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें रिक्रूटमेंट से संबंधित है. मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बताना चाहता हूं कि 16 राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है, रिक्रूटमेंट करती है आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 के तहत, और शेष में हाई कोर्ट इस काम को करता है. जहां तक टोटल जो हमारी 2025 के आंकड़ों के अनुसार मैं कह सकता हूं, देश भर में डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी 25,886 है. उसमें से जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 21,031 है. जो वैकेंसी है 4,855 है. इन्होंने ये कहा है कि रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आती है. ये एग्जाम लेने का काम, उनके रूल्स बनाने का काम, रूल्स आर्टिकल 309 के तहत बनाने का काम, ये 16 राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को है और शेष में हाई कोर्ट को है. हम समय समय पर, जो आपने चिंता प्रकट की है, हम समय समय पर जो हमारे स्टेट हाई कोर्ट्स हैं उनको पत्र भी लिखते हैं और उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वैकेंसी स्टेटस, टाइमली कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पब्लिक कमीशन, उसको वो इंश्योर करें और बॉटलनेक्स जो आती है उसको वो दूर करें. जहां तक शिकायतों का मसला है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में बिहार राज्य से भी एक शिकायत आई हुई है
हमने संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी हुई है उनको भेज रखा है। The House stands adjourned to meet at 2 p.m.